একসাথে খুঁজি নিজেদেরকে, চলো একসাথে গান লেখি নতুন ভাবে। বলো তুমি কি অপেক্ষার অবসান ঘটাবে? তুমি কি আমার পাশে এসে বসবে? আমার স্পর্শগুলো অনুভূতি বুঝবে। চলো একসাথে উড়ি মহাকাশে, নতুন ভোর, নতুন শুরুতে। চলো একসাথে উড়ি মহাকাশে, নতুন ভোর, নতুন শুরুতে। আজও অচেনা লাগে যেন, আজও পুরনো কবিতাগুলো, আজও খাতার মলাটে ভেতর পড়ে থাকা গানের শেষ অংশ। লেখাগুলো অস্পষ্ট থেকে গেল, শুরুগুলো হারিয়েছে কোথাও যেন। ফিকে ফিকে লাগে আমার গান লেখাগুলো। বলো তুমি কি অপেক্ষার অবসান ঘটাবে? তুমি কি আমার পাশে এসে বসবে? আমার স্পর্শগুলো অনুভূতি বুঝবে। চলো একসাথে উড়ি মহাকাশে, নতুন ভোর, নতুন শুরুতে। চলো একসাথে উড়ি মহাকাশে, নতুন ভোর, নতুন শুরুতে। নতুন শুরু, নতুন শুরু, নতুন ভাবে চলো একসাথে। নতুন শুরু, নতুন শুরু, নতুন ভাবে চলো একসাথে। വേഗം പോക്കതേ പണ്ട് തേടുകാണതേ, സായം മാറതേ, കണ്ണ് ബാധിയേറതേ. ഒരു പോർവൈക്കുള്ളേ നീയും നാനും சேரும் நேரம் கூடுதே. ஒரு தேடும் எந்தன் தேகம் யாவும் ஏங்கி ஏங்கி வாடுதே. தடையேதும் இல்லை, இது ஜாதி முல்லை, வேகம் கொண்டு தீயாய் தீண்டவா. சுதியெடுத்து சுகாட்டு, மேளம் கொட்டு, புது மொட்டு இளஞ்சிட்டு, எரை மீட்டு மீட்டு, சுதியேத்து எரை மாத்து, சுகாட்டு, மேளம் கொட்டு, புது மொட்டு இளஞ்சிட்டு, ஜதி போட்டு மீட்டு மீட்டு.
ஜாதி முல்லை உத்வேகம் கொண்டு தீயாய் தீண்டவா சுதியேத்து சுகாட்டு மேளம் கொட்டு புதுமொட்டு இளஞ்சிட்டு எரமீட்டு மீட்டு சுதியேத்து எரகாட்டு சுகாட்டு மேளம் கொட்டு புதுமொட்டு இளஞ்சிட்டு ஜதி போட்டு மீட்டு மீட்டு சுதியேத்து சுகாட்டு மேளம் கொட்டு புதுமொட்டு இளஞ்சிட்டு எரமீட்டு மீட்டு சுதியேத்து எரகாட்டு சுகாட்டு மேளம் கொட்டு புதுமொட்டு இளஞ்சிட்டு ஜதி போட்டு மீட்டு மீட்டு सुआ तू है जा दिल में बसे जा ख्वाब सजे जा ए जा सुआ तू है जा दिल में बसे जा ख्वाब सजे जा ए जा सुआ तुम ही मेरा मालू साचा तुम ही रोना हर जन्म का साथी मेरा राही मेरा हो सुआ तू है जा दिल में बसे जा ख्वाब सजे जा ए जा सुआ हाँ सुआ सुआ मेरी माया जैसी माया ना थी कतीले फिर खोजी ले जोड़ी तेरी मेरी ओ सुआ मेरी माया जैसी माया ना थी कतीले फिर खोजी ले जोड़ी तेरी मेरी तुझे मेरो जुड़ो साथी हर जन्म को मानी ले अपनी बात तो सोच मेरी हिया कई म्यार से तुझी माया कई रोग लगूची तेरी मिट्टी मिट्टी बोली हाय हाय ओए होए सुआ तू है जा दिल में बसे जा ख्वाब सजे जा ए जा सुआ आजा सुआ आजा तेरी मुखड़ी दिखा जा सुआ पहाड़ों की धुन कोई गुन गुन आजा सुआ आजा मेरी बाहों में समा जा सुआ हौले हौले दिल का दर्द बता जा सुआ तुम ही मेरा मालू साचा तुम ही रोना हर जन्म का साथी मेरा राही मेरा हो ए जा सुआ तू है जा दिल में बसे जा ख्वाब सजे जा ए जा सुआ This is Girls Math. Me, myself, and I. I would like to acknowledge that we are here today on the land of the Darug people. The Darug people are the traditional owners of this land. We also acknowledge the past and present Aboriginal and Torres Strait Islander people who now reside within this area. I would like to acknowledge that we are here today on the land of Darug people. The Darug people are the traditional owners of this land. We also acknowledge the past and the present Aboriginal and Torres Strait Islander people
who now reside within this area. I would like to acknowledge that we are here today on the land of the Darug people. The Darug people are the traditional owners of this land. We also acknowledge the past and the present Aboriginal and Torres Strait Islander people who now reside within this area. I would like to acknowledge that we are here today on the land of the Darug people. The Darug people are the traditional owners of this land. We also acknowledge the past and the present Aboriginal and Torres Strait Islander people who now reside within this area.
8:08 हुए हैं और आज है 24 अक्टूबर. It's the 24th of October 2024. 24/10/2024. It's 8:08 PM in the night. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये 304वां एपिसोड, 304th एपिसोड ऑफ कहते सुनते, जो कि आपके प्यार से और आपके सपोर्ट से 304थे एपिसोड पर पहुंचा है. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और सो आई नो कि हमारी जो ऑडियंस है वो बड़ी सिलेक्टेड है. इट्स नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी, लेकिन जो भी आप लोग जुड़ते हैं और जो अच्छी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, और मैं कब बाहर जाता हूँ जब लोग मिलते हैं मुझे तो दे डू गिव मी सम फीडबैक. सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग अगर देखते हैं इसको, अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करें तो बहुत बढ़िया बात हो जाए. ओनली $3.99 अ मंथ, नथिंग मच. अगर वो भी नहीं कर सकते तो शेयर कीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम देखिए प्रोग्राम को, ताकि यू कैन जॉइन इन विद सम वेरी गुड कॉन्वर्सेशंस एंड बेसिकली अनफर्ल कि भाई सिडनी में क्या हो रहा है, और स्पेशली देसी कम्युनिटी में, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है विद आवर कम्युनिटी. ऑफ कोर्स, एंड एज आई ऑलवेज से कि ये दिस इज़ अ स्मॉल stone in the foundation that is being laid for Indian media in the next few decades maybe. तो Indian media, जब आपकी future generations को जानना होगा कि how to stay connected with India or in the subcontinent, so they will look at the local Indian media here and उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं by laying the foundation of that big event that will happen sometime in the future. So इसको support कीजिए, ethnic media को, community media को support कीजिए, because हमारी आवाज़ों के लिए सिर्फ यही जगहें हैं जहाँ पर आपकी आवाज़ और मेरी आवाज़ सुनाई देगी. Channel 9 doesn't want to talk to us. ABC के लिए we are not so big, but अगर आपको अपनी आवाज़ पहुँचानी है, so this is a great media. कहते सुनते इस कार्यक्रम का नाम है. हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक हम लोग आते हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी. और मेरे साथ जुड़े हैं अभी तक नीरज नंदा जी. कैसे हैं आप नीरज नंदा जी? इस प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा साउथ एशिया टाइम से, मेलबर्न से हमारे साथ जुड़ते हैं. पॉल वर्बिक, आई डोंट नो इफ यू स्टिल वाचिंग, बट इफ़ यू आर, हेलो. एंड ऑफ कोर्स अभिजीत सरकार जी इज़ वाचिंग. एंड आज अभिजीत सरकार विल बी ऑन द शो एट अबाउट 8:20. तो हम लोग बात करेंगे बिकॉज ही इज़ doing the Bollywood Karaoke Showdown, जो कि 3 नवंबर को हो रहा है, and he's one of the judges there, a very important judge. So we'll be talking to him and we'll find out कि क्या होना है उस दिन और क्या एक्साइटमेंट है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. ऑडिशंस हो चुकी हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं. सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ ग्रेट स्टफ दैट इज़ हैपनिंग. संजीव राजा जी, संजीव राजा मेरे जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था कहते सुनते, तो ही वॉज माई फर्स्ट को प्रेजेंटर एंड वो फिर थोड़े बिजी हो गए. बट थैंक यू संजीव, अगर आप अभी भी हैं तो. संजुक्ता जी इज़ वॉचिंग. हेलो संजुक्ता जी, कैसे हैं आप? अनु भरत जी, हेलो अनु, आई होप यू आर गोइंग टू स्टिक अराउंड. एंड ऑफ कोर्स फतेहजीत सिंह जॉली, जो कि मेलबर्न में बैठे हुए हैं. सो वी हैव अ डिस्परेट ऑडियंस. कोई मेलबर्न में है, कोई सिडनी में है. सो या इट्स इंटरेस्टिंग. सो कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं. और यूट्यूब पर आई नेवर कम टू नो कि यूट्यूब पर कौन है अनलेस पीपल कमेंट. ओके, या. एंड आज शो पे बहुत कुछ होने वाला है. टुडे इट्स पैक्ड. It's going to be so packed कि it's going to be a great show. It's going to be packed. It's the best show. Yeah, I'm not sounding like Donald Trump जैसे बात करते हैं ना, वैसे कि भाई हम we are going to be. And of course सुमन माथुर जी भी पहुंच चुकी हैं. Now we can start the program. सलाम नमस्ते कह रही हैं सुमन माथुर जी. That's very nice. And Suman is a good supporter of this program. And तो आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ पिछले हफ्ते. ओप्स ओह वाओ. पाली हिल की एक रात, ये प्ले देखा मैंने. इट वाज रियली अमेजिंग. बहुत खूबसूरत था प्ले. एंड सबा जैदी आब्दी जी की डायरेक्शन थी और हमारे लोकल आर्टिस्ट थे उसके अंदर. एंड
इट वॉज फैंटास्टिक. द स्टोरी लाइन, स्क्रिप्ट, सब कुछ बढ़िया था. एंड उसमें लाइव सिंगिंग थी विच वॉज अमेजिंग. और अपर्णा तिजोरीवाला की आई वॉन्ट टू congratulate her. I mean, apart from the acting and all that, लेकिन जो उनकी सिंगिंग थी, that was fantastic. So बहुत अच्छा लगा. So पाली हिल की एक रात अगर आपने मिस किया तो आई एम सॉरी, अब ये मिस हो गया है क्योंकि 2 शोज़ थे एंड दे आर फिनिश्ड. सो अगर आप सबा जी को फोर्स करें तो हो सकता है शायद शी माइट डू सम अदर शोज़, बट अगर आपने मिस किया तो प्लीज़ आई थिंक यू मस्ट वॉच इट. कल रात सेफ्टी पिन जो कि तौफीक अहमद शेख का ब्रेन चाइल्ड अलॉन्ग विद श्वेता है, तो वहाँ पे गया था मैं एंड दैट वाज रियली गुड टू सी एंड हियर सम लोकल वॉइसेस. बहुत अच्छा लगा और द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशंस वाज वेरी वेरी गुड. तो अगर आप वहाँ पे भी नहीं पहुँचे हैं तो अगले सेफ्टी पिन का जो एपिसोड होगा वहाँ पे ज़रूर आइएगा. आज जैसे मैंने कहा कि अभिजीत सरकार जी आएंगे एंड ही विल टॉक अबाउट द बॉलीवुड कैरियोकी शोडाउन दैट्स गोइंग टू हैपन ऑन द 3rd of November एंड वो ही इज़ वन ऑफ द जजेस देयर. सो दैट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. आज और शैलजा चंद्रा आएंगी. शैलजा जो कि एक ऑथर हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, द मून स्मिथ गुलजार. तो शी विल कम और हम लोग बात करेंगे हाउ डू यू नेविगेट फैमिली रिलेशनशिप्स. फैमिली रिलेशनशिप्स, फैमिलीज़ हमें बहुत खुशी देती हैं, फैमिलीज़ हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, फैमिलीज़ में हम लोग ग्रो करते हैं, फैमिलीज़ हमें रीज़न देती हैं अगले दिन जागने का. बट एट द सेम टाइम फैमिलीज़ हमें परेशान भी बहुत करती हैं. द रिलेशनशिप्स इन द फैमिलीज़ ट्रबल अस. सो वील टॉक अबाउट हाउ शुड वी नेविगेट फैमिली relationships. तो if you want to talk about that, please बताइए. Do family relationships go smoothly? ये तो होता ही नहीं कहीं पर भी. But as people from the subcontinent, मुझे याद है कई साल पहले किसी ने कहा था कि Indians keep family in the center और उसके आसपास अपनी लाइफ बुनते हैं. While in the Western world or more जो individualistic societies हैं, family is an important part, but they are in the center and the family is around. So they keep themselves in the center, not the family. And मुझे ये बड़ी अच्छी definition लगी थी. But we'll talk about that and how to navigate that. Taufeeq Ahmed Sheikh आएंगे. We'll talk about safety pin and of course some other things. But हर Thursday की तरह आज भी पहुंचेंगे नीरज नंदा जी southasiatimes.com.au से. और वो हमारे को क्या बताने वाले हैं, क्या न्यूज़ है मुझे नहीं पता, बट ही विल टॉक अबाउट दैट. और उन्होंने A.R. रहमान को इंटरव्यू किया था. सो या इफ़ यू वांट टू सी दैट इंटरव्यू, इट्स अ वेरी ब्रीफ इंटरव्यू बट या सो दैट्स गुड इंटरेक्शन. एंड ऑफ कोर्स क्रिस मल्लिका भद्रा भी आएंगी. क्रिस विल टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट वरी हर. और अगले हफ्ते क्या है, दिवाली. आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया है कि नहीं? डू यू गैम्बल अराउंड दिवाली? बताइए. अभी लोगों का शुरू रहता है ना लक्ष्मी पूजा के पहले गैम्बलिंग. तो डू यू गैम्बल? आई एम नॉट अ गैम्बलर बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इफ़ यू गैम्बल. डू लेट मी नो. एंड या ये सब होने वाला है. अमन विजन इज़ ऑल्सो देयर. अमन विजन ने कल बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाई एट सेफ्टी पिन. कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए. सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू अमन फॉर दैट. एंड या सो आई विल प्ले सम म्यूजिक और इसके बाद में अभिजीत सरकार जी को आमंत्रित करूंगा मैं. आप लोग जाइएगा नहीं, यहीं रहिए. सुआ तू है जा दिल में बसे जा ख्वाब सजे जा ए जा सुआ तू है जा दिल में बसे जा ख्वाब सजे जा ए जा सुआ. तुम ही मेरा मालू साचा, तुम ही रोना हर जन्म का साथी, मेरा राही मेरा हो. सुआ तू है जा दिल में बसे जा ख्वाब सजे जा ए जा सुआ. हाँ सुआ.
नाती कतीले फिर खोजीले जोड़ी तेरी मेरी ओ सुआ मेरी माया जैसी माया नाती कतीले फिर खोजीले जोड़ी तेरी मेरी तुझे मेरो जुड़ो साथी हर जन्म को मानी ले अब यूं बात तो सोच मेरी हिया कई म्यार से तुझी माया कई रोग लगूची तेरी मिठी मिठी बोली हाय हाय ओए होए सुआ तू है जा दिल में बसे जा ख्वाब सजे जा ए जा सुआ आजा सुआ आजा तेरी मुखड़ी दिखा जा सुआ पहाड़ों की धुन कोई गुन गुन आजा सुआ आजा मेरी बाहों में समा जा सुआ हौले हौले दिल का दर्द बता जा सुआ तुम ही मेरा मालू साझा तुम ही रोना हर जन्म का साथी मेरा राही मेरा हो ए जा सुआ सुआ तू आजा दिल में बसे जा ख्वाब सजे जा ए जा सुआ तो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ में अभिजीत सरकार जी पहुंच चुके हैं. एंड अभिजीत सरकार आप लोग जानेंगे कि भाई ही इज़ सिडनी इंस्टीट्यूशन एंड नटराज एकेडमी के फाउंडर एंड क्यूरेटर एंड बहुत सारे चीज़ें करते हैं. बट आज हम लोग उनसे बात करना चाहेंगे अबाउट द बॉलीवुड कैरियोकी शोडाउन. अभिजीत जी कैसे हैं आप? I'm well, Manbir. Thanks for having me on the show. Yeah. Can you speak up a little, please? I'm sorry. Can you hear me now? I can hear you. Yeah, definitely. But थोड़ा level. You're very soft spoken वैसे भी. तो थोड़ा I think we need to. अब देखो. कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक मनबीर. Thank you. Good. So I know you for a long time, but I've never seen you involved with karaoke. And you are a live musician. आप खुद पता नहीं 45 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं. तो ये कैरियोकी के चक्कर में कहाँ से पड़ गए, क्यों? देखिए मैं खुद I don't sing karaoke songs, लेकिन I do appreciate singers who do and do a good job on karaoke. It's not an easy task to sing well, and well is the word here. लोग तो ऐसे karaoke tracks लगा के गा देते हैं, लेकिन अच्छे गाने वाले जो karaoke पे अच्छे गाते हैं, I'm truly interested in their skills, and that's why when this opportunity came up, मैंने कहा ठीक है, I'll definitely be a part of this event. So what's difficult? अगर कैरियोकी पे इतना क्या मुश्किल है यार, पीछे म्यूजिक बज रहा है साथ में गा दो, क्या मुश्किल है इसमें? What happens is कि when a lot of people they sing on karaoke tracks, then they ride on the shoulders of the track itself, not on the shoulders of their own skill. That is the difference. So it's easy to then consider yourself. People get this thing that they are very good singers because they are riding on the shoulders of a karaoke track. And hence it's important therefore to differentiate between the two. People who also have skills, very good singing skills, and sing on top of track. That's what I'm looking at. और जैसे लाइव बैंड के साथ में अगर आप गाएं और अगर आप गलत भी जा रहे हैं तो द बैंड ऑल्सो एडजस्ट विद यू. बट कैरियोकी में यू डोंट हैव दैट ऑप्शन क्योंकि वो रिकॉर्डेड है. That's right. बट उसका एडवांटेज है कि यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट विद You can. कैरियोकी. Of course you can. But you can also do that with a band. But the difference is exactly what you said, that if the track doesn't stop for you, doesn't adjust to your singing. So if you miss something, the rhythm or the melody, then you're off. तो एक मिनट, ये 3 नवंबर को हो रहा है शो, द बॉलीवुड कैरियोकी शोडाउन. टेल अस अबाउट दैट. एंड इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे एप्लीकेंट्स थे मैंने सुना है, और उसमें से शॉर्ट लिस्ट हुए हैं फाइनलिस्ट.
So what was that process like, and what was your involvement? What did you do? So I was, yes, there were a lot of participants initially. Ji. I was not involved in the auditions, but but they were filtered based on their skill by a group of judges, and the final 14 contestants come to the final. 14. 14. And I was told by the audition judges that they have heard some extraordinary voices during the auditions. So And obviously conflict of interest. आप जज हैं तो आप ऑडिशंस में नहीं हो सकते थे. और कौन-कौन जज हैं? अरुण है एक तो. रचना भटनागर है. She knows her singing, of course. You know your singing. And Arun, of course, is a great curator of singers. और मधुर सिंह जी हैं. तो हम the four of us are Okay. judges. तो when you are judging, तो इसके पहले कुछ आप लोग डिस्कस करते हैं कि भाई क्या देखना है क्या नहीं, कोई क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करते हैं आप? क्राइटेरिया काफ़ी हैं उसमें. मेजर द थ्री थिंग्स विच आर द थ्री पिलर्स ऑफ सिंगिंग एनीवे. वन इज़ कि आप मेलोडी ठीक हो, सुर में गाएं, रिदम सही हो, ताल में गाएं प्रॉपर. And finally, which is, I think, one of the most important criteria is the emotional content of a song. आप कितने भी सुर में गाते हो, कितने भी ताल में गाते हो, लेकिन अगर emotional content अच्छा नहीं है, तो then the song is not good enough. in my opinion. या उसको जैसे टू बी दैट पार्ट, जैसे उस कैरेक्टर में जाके गीत गा पाना. And that was something that Kishore Kumar could do a lot. Even Mohammad Rafi could do a lot. आजकल तो सिंगर सारे वो they sing for everybody ना, वो एक ही आवाज. लेकिन किशोर could adjust to, you know, one actor. He could sing differently for Rajesh Khanna, for Devanand he could sing differently. तो वो आजकल that flexibility doesn't exist क्योंकि वो music seems to be mass produced. The flexibility is not there. Also, the requirement is not there. ये भी है. So the songs of today, even if they are good songs, they have lost their identity. The identity that we knew in our time for the singers. So 14 voices, and these are young people or these are older ones, or is that a secret? Well, it's a secret for me. Because Okay, so that's good. आपको कुछ पता नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. That's fantastic. So that we can maintain the balance. I see their photographs on Facebook and on social media, but I don't know them per se or how they sing. I'm not very aware of it. ठीक है. So 3rd November को कोई डिटेल्स दीजिए हमें अगर आपको याद है तो, कि कहाँ पे, क्यों, कितने बजे. ये एशफील्ड लीग्स क्लब में है. At 3 o'clock. It starts at 3. There will be, I guess there are 2 rounds of singing. So 14 will sing, they'll be shortlisted, and then they'll come to the final round. So 3 बजे हैं at Ashfield Leagues Club. And I really would like to encourage people to come and listen to these exciting voices, give them the support that they need. क्योंकि आजकल सिडनी में ये है कि गाने वाले या तो एक्टिंग करने वाले ऐसे टैलेंट्स बहुत हैं. The only unfortunate part is that they don't know what to do with themselves. कहाँ किससे मिले. So this is a good platform for singers, I think. And they need all the encouragement. So 3 p.m. the Lounge, West's Ashfield Leagues Club, and the grand finale judges are Avijit Sarkar, Rachna Bhatnagar, Arun Nanda of Heart and Soul, Madhur Singh, and this is going to be an interesting and exciting opportunity for a lot of local people. And if people want some information, they can contact 0411 818 773. 0411 818 773. And you'll get a good opportunity to watch the judges make some very interesting decisions. Appeals process है कि नहीं अभिजीत जी? अगर मुझे लगा कि भाई मेरी आवाज तो फन्ने खाए लेकिन आपने मुझे बाहर निकाल दिया, कैन आई अपील इट? I don't know, that's up to the organizers कि वो अपील करने. I mean, look, there are many competitions where that appeal thing is there.
I'm not sure it's there in this competition. Okay. Unless, of course, the organizers say yes. It'll be hard to appeal your decision क्योंकि obviously आपने once you and the other judges decide, so hopefully you'll give it a very good thinking before you do, and we know that you normally do that. ठीक है. And what else is happening? You are organizing anything for your shows? What are we expecting next time? मेरे तो एक 21st December को एक concert आ रहा है. Manveer, these days I just don't do concerts just for the heck of it. That interest is gone. क्यों? Out of my concerts. Why? That's because I've done too much. Manveer, 10 साल हो गए Okay. stage पे. So next year will be my 50th year, so that's a long time. So आजकल if I do concerts where I can give back something to society. That's it. So if it's a charitable thing, then it's for me, for sure. So how are you going to manage this transition? What's happening in the transition? You said you are losing interest. I'm losing interest in just doing concerts for the heck of it. So if there's a concert with the content that I like, I'll do it. Or if it's for the society, for the good of society, for charity, I'll do it. आप charity के लिए तो करते ही हैं. So that's a good thing. And also hopefully this will encourage जो आपका ये 3rd November को जो हो रहा है, the Karaoke Showdown. So hopefully that will encourage a lot of youngsters and local people. Some confident, some not confident. And maybe, but एक बात बताइए कि यहाँ पे local talent है, but none of this talent is breaking big. यहीं पे रह जाते हैं हम सब. It depends upon what you mean by breaking big. Do you mean they transition back to Bollywood? Is that what you mean? Maybe Bollywood. आजकल तो Bollywood एक है, but also independent albums. You know, none of them is. Sydney से हम लोग अब तक export नहीं कर पाए कोई अच्छा talent. ये मुश्किल है, Manveer, to export talent back into Bollywood, especially because of the amount of competition and the system there is a bit different. So just because you're a fantastic singer, it doesn't mean that you'll be able to break into Bollywood, even with your original songs or whatever. It's a different ball game there. जो हम लोग आजकल तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना है. अभी जैसे मैं प्ले करता हूँ अपने शो पे, आई एम प्लेइंग ऑल इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्योंकि फेसबुक की कॉपीराइट्स के लॉज ऐसे हैं. आई कांट प्ले मेन स्ट्रीम म्यूजिक. तो फेसबुक का अपना कंटेंट है म्यूजिक का, विच आई प्ले. बट इतने अच्छे टैलेंटेड सिंगर्स हैं उसमें, एंड द म्यूजिक इज ग्रेट, बट स्टिल दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू दिस फेसबुक कंटेंट में ही रह जाते हैं. यू नो, मैं कई गाने प्ले करता हूँ, लोगों ने सुना ही नहीं है कहीं पे. और देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ के जो प्रमोटर्स हैं शो के, the producers हैं, they should also look at the local talent or encourage them to come on stage. क्योंकि I know so many good singers out here who are not getting that break that they really deserve. नहीं मिल रहा है उनको. It's very unfortunate. And also they getting washed out with overseas concerts. तो लोग इतने concerts होते हैं कि local जो है वो कोई hardly को सुनता है. लेकिन ओवरसीज जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें लोगों को यहाँ पे दे कम टू नो कि कैसे परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं. अभी जैसे अरिजीत सिंह का जो शो था, उस टाइम पे इतने सारे लोकल लोगों ने अरिजीत के साथ गाया गाना, एंड वो दैट विल बी द हाईलाइट ऑफ देयर लाइफ, एंड ऑब्वियसली दैट विल गिव देम सम मोटिवेशन कि आगे जाके कुछ कर पाएँ. देखो, मैं जो सिंगर्स हैं या तो परफॉर्मर्स हैं, उनसे दिस माई वर्ड ऑफ एडवाइस, आई माइट बी रॉन्ग, कि ज़िंदगी में इतना मेहनत करो म्यूज़िक में हो कोई चीज़ में कि you don't get the pleasure by singing with someone else. Make sure that people are running after you to sing with you. But that's a very big achievement. Yeah, that's an achievement. It can be done. Needs a lot of hard work. So this concept of कि 10 गाने गा लिए, स्टार बन गए, गा लो, और इस तरह से बात नहीं बनती है. ये जिंदगी का मामला है, पूरी जिंदगी निकल जाती है. It's a hard grind, yes. Very hard. Suman Mathur कह रही हैं, I love the Facebook collection that you play, Manveer. Oh, so that's good. Thank you.
We've been joined by Jazbat Safar, Kamal Khajuria ji, and Mubina ji, Mubina Jamdar, जो कि एक diabetes dietitian है. She's also here. All right. So we look forward to the show on the 3rd, and you have a great Diwali. Of course, we'll have a show next week, Diwali के एक दिन पहले. लेकिन कोई जुआ हुआ खेल रहे हो कि नहीं दिवाली के पहले? मेरे साथ कोई खेलना नहीं मांगता. क्यों? आप मैथमेटिक्स लगा के हरा दोगे? ठीक है. One day we'll sit down with a deck of cards, Manveer, and I'll show you a few things. Okay, all right. I'll look forward to that. Are you a card sharpener or what? No, sort of. Okay, wow. वो बहुत बड़ा talent है. चलिए, thank you Avijit ji, and thank you for encouraging local talent, and hopefully the winners or even the finalists will bring some recognition to the local talent in Sydney in Australia. अच्छा, हाँ, ये पूछना भूल गया, ये सिर्फ सिडनी के लोग हैं या बाहर से भी हैं? सिडनी से ही हैं सारे. सिडनी से. ओके, ऑलराइट. चलिए, you have a good night and thank you for your time. We've been meaning to talk to you for a long time. Thanks for having me there. You look after yourself. You too. Thank you. So ये है अभिजीत सरकार, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, and he's done a lot for music. He's done a lot for जैसे in promoting local people, उन लोगों को encourage करना, नए students music में and singing. There was also drama attached to them, so he does a few things. So नटराज Academy के साथ अगर आप लोग जुड़े नहीं हैं तो जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारी opportunities हैं if you want to learn new activities. And of course the Bollywood Karaoke Showdown, that should be exciting. I've put that on the screen. आपको डिटेल्स मिल जाएंगी वहाँ पे. फ़ोन नंबर्स अगर आपके पास नहीं है तो बताइए चैट में. I'll give you the phone numbers again. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और मैं हूँ मनबीर सिंह कोहली. के रंग में
संभाले निकले थे सारे हम भी वहीं थे आंखों में तारे बड़ी थी बातें बड़े इरादे ऊंची उड़ाने लाख फसाने सर्द की रातें लंबी सी लगती धूप वहां पे ठंडी सी लगती सपने हमारे पूरे हुए सारे फिर भी कहीं पे कुछ तो कमी थी बेसब्री की बात हो रही थी तो मैं बेसब्री से नीरज नंदा जी का इंतज़ार कर रहा था जो कि साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से हमसे जुड़ते हैं southasiatimes.com.au। नीरज जी पिछले हफ्ते AR रहमान के शो में मूव्स लगा रहे थे बड़े धांसू वाले डांसिंग और फिर उसके बाद उन्होंने उनका इंटरव्यू भी किया। कैसे आप नीरज जी? छोटे लोगों में बात करने आ गए आप? हाँ जी, वो इंटरव्यू एक्चुअली मैं पहले किया था शो से। अच्छा, पहले किया था। ओके ओके, मैंने अभी देखा रिकॉर्डिंग। तो वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो चाहते थे कि आई शुड आस्क हिम क्वेश्चंस। व्हेन आई सीन द शो व्हाट विल आई आस्क, यू नो। So then I asked him different issues about music industry and all that. AI के बारे में पूछा आपने? अपने AI के बारे में पूछा तो वो आप हमारे वेबसाइट पे जाके, अभी वेबसाइट पे लगाया नहीं है बट हमारे YouTube चैनल में अवेलेबल है वो जी। तो मैं कहा आपको मैं उसको वेबसाइट पे भी लगा दूंगा। चलिए, और क्या हो रहा है खबरों की दुनिया में? खबरों की दुनिया में सबसे पहले हेलो टू एवरीवन, everybody in Sydney, Melbourne और wherever else और in the world, जो भी हमारे को सुन रहे हैं उनको सब मेरा सबका हेलो मेलबर्न से। और पहली खबर ये है मनवीर जी कि रशिया के कजान में हुई ब्रिक्स समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चीन के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स रीस्टार्ट करने पर सहमति बनाई। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति, यानी कि जो बॉर्डर है हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, पर शांति रखने को एक मुख्य एम बताया। मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और चीन के प्रेसिडेंट ने दोनों देशों में कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन पर जोर दिया। मतलब उन्होंने बॉर्डर के बारे में कुछ नहीं बोला कि हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमें बातचीत कंटिन्यू करनी चाहिए। और इंडिया और चाइना के बीच हम सभी जानते हैं कि पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट है और भारत की बहुत बड़ी टेरिटरी पर चीन ने कब्जा कर रखा है अस्किन चेन के अंदर, और एक पोर्शन है जो पाकिस्तान ने चीन को मुफ्त में दे दिया था। मतलब और तो अब यह है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यही है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इंडिया चाइना का, परंतु मुझे लगता है कि भाई उन्होंने जो हमारा हिस्सा या जो भारत का हिस्सा कह लीजिए कि चीन की, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई वहां पे। मतलब हाँ, वो तो शांति है ना, चीन का तो नाम भी नहीं लेते। हाँ, और तो चलिए ये वो तो डिस्प्यूटेड है। और अब चलते हैं सीधा मणिपुर पर। मणिपुर के एक पावरफुल मैथई ग्रुप, जो कि वहां का एक सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, ने विश्व मैथई, जिसका नाम है विश्व मैथई परिषद, ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह को पद से हटाया जाए। बिल्कुल, उसको तो निकालना चाहिए वहां से। हाँ जी, इस चिट्ठी में दलील दी गई है कि हिंसा के 17 मंथ्स हो गए हैं के बाद भी चीफ मिनिस्टर अभी
मणिपुर राज्य में शांति कायम करने में विफल हुए. He has failed to peace in the state. और प्राइम मिनिस्टर साहब दुनिया भर में जाके शांति की बातें करते हैं. अब वो ये भी कह सकते हैं ना, अगर मतलब मैं उनकी तरफ से तो नहीं बोल सकता कि सारी दुनिया में मणिपुर भी शामिल है. तो लेटर के अनुसार मणिपुर के समुदाय अपने ही स्टेट में रिफ्यूजीज बन के हो गए हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो. तो वो लोग एक तरह से मतलब ये हो गया कि मणिपुर जो है वो 2 कंट्रीज बन गई हैं, मतलब अलग अलग. मतलब तो अब किस तरह से लोग वहां गुजारा करते हैं, आई एम श्योर दे मस्ट बी कई जुगाड़ होंगे उसके या कुछ होंगे तरीके. बट ये एक संगठन है जिसने कहा कि सीएम को जाना चाहिए, नई लीडरशिप आए और वो इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा. इट्स अबाउट टाइम दैट ही गोज. बट ऐसा लगता नहीं कि वो जाने की इच्छा में है उनकी. तो वो कहते हैं ना कि पावर को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है मन में. तो उधर इजराइल पर अक्टूबर 1 के ईरान के मिसाइल अटैक के बाद, मतलब उन्होंने ईरान से ही मिसाइल चला के तेल अवीव तक पहुंचा दिया. वेरी सैड. इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है उनका देश ईरान पर इसका बदला लेने के लिए हमला कर सकता है. वो तो कर ही रहा है. 22-23 दिन हो गए इस बात को, बट अभी हमला हुआ नहीं है. ईरान ने अक्टूबर 1 को हजीबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला, उसके बाद एक और लीडर की डेथ हुई है, ये उससे प्रीवियस वाले का नाम है जो उनके लीडर थे, किलिंग के बाद इजराइल पर मिसाइल्स से हमला करा था. मतलब ईरान ने किया था. इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस हमले से अब जो हम हमला करेंगे, मतलब उनका कहने का ये है जो हम प्लान कर रहे हैं उससे दुनिया को पता चल जाएगा कि इजराइल की ताकत कितनी है. और उधर जो उनका प्लान था वो अमेरिका को पता था और अमेरिका से वो लीक हो गया. मतलब वो जो प्लान था ईरान पे हमला करने का, तो उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है. ये समझ नहीं आ रहा कि वो लीक कैसे हुआ, या हो सकता है जानबूझ के लीक कर दिया होगा. ये भी डेट इज क्वाइट पॉसिबल. उधर कनाडा में अब मनबीर जी कहना है कि जो भारतीय समुदाय और भारत है वो सारी दुनिया में ही है. मतलब बिल्कुल. उधर कनाडा में 1985 की ये करंट इशू से नहीं है रिलेटेड. उधर कनाडा में 1985 की जो एयर इंडिया की जो मॉन्ट्रियल से मुंबई फ्लाइट की बॉम्बिंग का केस में में एक्विटेड व्यक्ति की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए 2 व्यक्तियों ने कोर्ट में गिल्टी प्लीड किया. मतलब अच्छा. इस आदमी ने कहा था कि मैंने वो उस हिंसा में पार्टिसिपेट किया उस हवाई जहाज के ऊपर, उसकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गई थी बाद में. रिपु दमन की या किसकी? अब जो भी थे, जिस भी व्यक्ति ने किया था उसकी हो गई थी. तो उसके लिए 2 व्यक्तियों ने मतलब उन्होंने एडमिट किया कि हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की थी. ओके. Somebody paid them to fight. तो ब्रिटिश कोलंबिया के कोर्ट में टैनर फॉक्स और जोज लोपेस, उन दोनों जिन्होंने गिल्टी प्लीड किया उनका नाम ने ओके. में आर पुदमन सिंह मलिक जिनका नाम था, उनकी हत्या की थी. मतलब परंतु वह इस बात पर बिल्कुल मतलब पीस शांत रहे कि उन्हें किलिंग करने के लिए किसने पेमेंट करी थी. ये उन्होंने इस बारे में कोर्ट में कोई भी खुलासा नहीं किया इसका. मतलब अब चलते हैं मनबीर श्रीलंका. श्रीलंका पहुंचिए. अरुकुम बे एक टूरिस्ट एरिया है श्रीलंका का. एरिया से इजराइल ने अपने सभी सिटीजन्स जो वहां अक्सर टूरिज्म के लिए जाते हैं तो वहां से इमीडिएटली हटने के लिए कहा है. समाचारों के अनुसार इस इलाके में बहुत अधिक इजरायली टूरिस्ट होने पर टेंशन है और उन पर अटैक होने का थ्रेट है. और इससे पहले अमेरिका ने भी अपने जो उनके सेनानी हैं, जो उनके टूरिस्ट हैं, उनको कहा कि वहां से हट जाओ. श्रीलंका के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेहान जया विक्रमसिंहे ने लोकल इजरायली बिजनेस के लोगों को श्रीलंका में इलीगली काम करने का आरोप लगाया कि भाई वो ये भी चल रहा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा वहां पे होटल बना लिया और वो मतलब कानून के अगेंस्ट है. तो ये मुझे लगता है कि श्रीलंका कुछ किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसने जा रहा है, ऐसा इस खबर से लग रहा है. मान लीजिए
जो कि मिडिल ईस्ट के इश्यूज से कनेक्टेड है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। अब चले पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने एक नए पास लॉ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की पावर को एकदम वीक कर दिया है। मतलब नया कानून पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने सीजेपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डर कर कि वह कहीं फरवरी के चुनाव में रिगिंग पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने वाले हैं उनसे उनको खतरा लगा था, उससे पहले ही उन्होंने कानून बदल दिया कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ना कर सके। मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ जस्टिस ने कहा है कि नया कानून इज ए ब्लो टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, एज इफ केयर्स देयर। मतलब तो यह पाकिस्तान की हालत है। अब आते हैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ। चलिए। राइटर विलियम डैलेम्पल की एंशियंट इंडिया की जो वर्ल्ड तक की ताकत था एंशियंट इंडिया पर नई पुस्तक द गोल्डन रोड पर इंटरव्यू में करण थापर से उन्होंने ये कहा कि 3rd से 13 सेंचुरी तक जो क्षेत्र अब भारत है वो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी आदि के लिए साउथ ईस्ट एशिया से बहुत मजबूत था। उन्होंने बहुत कुछ दिया मतलब दुनिया को, मतलब, और वो बहुत फेमस हुआ। परंतु जिस प्रकार ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मनबीर जी कि जिस प्रकार ग्रीस वेस्टर्न कंट्रीज में फेमस है, भारत को वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ। मतलब कि हम ग्रीस से कम नहीं थे बट हमें वो जगह नहीं मिली। हाँ, क्योंकि वो यूरोपियन है ना। हाँ, वो यूरोप थी और ये हम इधर एशिया में है। अब विलियम डैलेम्पर के अनुसार एंशियंट टाइम्स में 3 देश बहुत हर चीज के लिए मशहूर थे। मतलब इंडिया का रीजन है सब कॉन्टिनेंट, चाइना और ग्रीस, ये 3 देश थे। और सबसे इसमें तीनों में स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन थी, और ग्रीस का तो हमें पता ही है और चाइना का भी पता है। और विलियम डैलेम्पर की पुस्तक से रिलेटेड प्रोग्राम्स न्यू साउथ वेल्स में अक्टूबर 31 और विक्टोरिया मेलबर्न में नवंबर 3 को होंगे, और वो यहाँ पे आ रहे हैं। बुक का लॉन्च हो रहा है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, और अगर इसके बारे में किसी को भी अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो उनको करण थापर का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने लेटेस्ट प्रोग्राम में विलियम डैलेम्पर को इंटरव्यू किया है। विलियम डैलेम्पर इज ऑफ स्कॉटिश ओरिजिन, और वो किसी जमाने में यंग एज में इंडिया में एज ए टूरिस्ट आए थे और वे वापस नहीं गए। तो वो कहते हैं कि इफ आई वांट टू बी बॉर्न अगेन, आई वांट टू बी बॉर्न एज एन इंडियन। वाह। और वो दिल्ली के पास मेहरौली में फार्म हाउस में रहते हैं। नाइस। उधर एक लोकल खबर सुनिए मंदिर जी। आईडीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब अमेरिका ही जाते हैं। मतलब अच्छा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके इस मामले में पिछड़ गए हैं। मतलब ठीक है। तो ज्ञात रहे कि सून ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एंट्री पर कैप लग जाएगा, मतलब वेरी सून। और कनाडा ऑलरेडी कैप लगा चुका है मतलब इंटरनेशनल। और इमर्जिंग फ्यूचर नामक इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में, अब ये बता रहे हैं इस रिपोर्ट में कि अमेरिका में क्यों जा रहे हैं लोग, कि क्वालिटी है, वैल्यू फॉर मनी है, और ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी अधिक हैं अमेरिका में। इसके चलते इंटरनेशनल की जो स्टूडेंट्स की जो इनरोलमेंट्स हैं वो सबसे अधिक अमेरिका में हो रही हैं। अच्छा। सबसे। और मनबीर जी इंटरेस्टिंगली आप कौन सी चाय पीते हैं? आप आवाज नहीं आ रही आपकी। वाघ बकरी। अच्छा, ये तो गुजरात की चाय है मतलब शायद। तो आप श्रीलंका की चाय नहीं पीते आप? हाँ नहीं, अभी नहीं, पहले पीता था डिल्मा, लेकिन आजकल वाघ बकरी। हाँ, तो ये अब खबर जो है हमारी श्रीलंका के टी वर्कर्स के बारे में है थोड़ी सी। बताइए। आप सबने सुना ही होगा कि श्रीलंका की चाय का जो कप्पा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया में मशहूर है श्रीलंका की चाय। लेकिन श्रीलंका के एक्सपोर्ट की चाय का बहुत बड़ा योगदान है। वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग चाय से होती है वहां पे।
अब 200 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत से तमिल लोगों को चाय और रबर प्लांटेशंस में काम करने के लिए वो लोग जो इंडिया से श्रीलंका ले गए थे। ओके। और टाइम श्रीलंका भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया की थी उसी के अंडर था। ठीक है। और अब ये क्या स्थिति है ये सुनिए। ये खबर मैंने DW जो जर्मनी की न्यूज एजेंसी है उससे ली है। हाउसिंग, वेजेस और आदि में आज भी टी वर्कर्स की हालत बहुत खराब है। मतलब उनको वो एक टूटे फूटे घर है और कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जो घोड़े के अस्तबल थे वो खाली करवा के उन लोगों को दे दिया गए थे रहने के लिए। अब कई लोग तो अभी भी उसी में ही रह रहे हैं। अधिकांश 150,000 टी वर्कर्स जो हैं श्रीलंका में, ये सब भारत से गए तमिल इंडियंस हैं और इसमें अधिकांश महिलाएं हैं जो हर रोज 18 से 22 किलो टी लीव्स मतलब जो है वो पिक करती है। मतलब दैट इज सच हार्ड वर्क। एक एक पत्ता अगर आप जोड़ें फिर 18-20 किलो बने तो बहुत सारा काम है। वो बहुत काम है और ये बाय हैंड होता है, कोई मशीन यूज नहीं होती इसमें। पीछे टोकरी लगी रहती है और वो एक एक पत्ता तोड़ तोड़ के उसमें डालती हैं। मतलब घंटों का तो कुछ पता ही नहीं है कितने लग जाते हैं। अब इनकी वेजेस सुनिए। इनकी वेजेस है 3 यूरो पर डे और आज भी ये लोग गरीबी से मर रहे हैं। ये वर्कर्स, जो वर्कर्स श्रीलंका के लिए एक इतनी अच्छी चीज सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, वो खुद उनकी क्या हालत है ये मैं इस खबर में बताना चाहता हूँ। इट इज वेरी सैड। नथिंग चेंजेस एट द ग्राउंड लेवल, मुझे ऐसा लगता है कई बार। हाँ, आई थिंक कुछ वहाँ के जो नई लीडरशिप आई है उसने कुछ इसके बारे में बात कही है, बट मेरे पास उसकी खबर नहीं है। और एंड में मनबीर जी एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बताइए भाई, अच्छी खबरों की तो वेट कर रहे हैं हम। आपके फेवरेट सब्जेक्ट की है, फिल्मों की। जी, तो एक अच्छी फिल्मी खबर यह है कि अपनी रिलीज के 20 साल के बाद अपने जमाने की हिट फिल्म वीर ज़ारा फिर से 7 नवंबर से पूरे ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हो रही है। अच्छा। बिग स्क्रीन। हाँ, ये आपने 1-2 हफ्ते पहले भी बताया था शायद। बताया था मैंने न्यूज में। जी जी जी। हाँ, बट एनीवे अब ये कंफर्म हो गया और मेरे पास यशराज फिल्म की मैंने मीडिया रिलीज देखी है। तो शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और यशराज फिल्म की ये सुपर हिट फिल्म भारत और पाकिस्तान के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मतलब वाह। उसमें तो और इसमें कुल मिला के 11 गाने हैं और मदन मोहन के गानों को रिवाइव किया गया था इसमें। आपको तो और गाने भी बड़े धांसू थे। बड़े ढांसू थे गाने और आज भी वन ऑफ द बेस्ट एवर मुझे लगते हैं। मतलब ऐसा मुझे फील होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई किसी का मन है तो वो बिग स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। मतलब और साउथ एशिया टाइम की साइट पर इस पे पूरी जानकारी इस फिल्म के बारे में क्या है क्या नहीं है, कितनी हिट हुई, क्या हुआ, मैंने आज ही स्टोरी फाइल किया है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए वेट करेंगे उसकी। ट्यूबी टीवी में देखी मैंने एल्फ्रेड हिचकॉक की जिसका नाम था नोटोरियस। ओके। 1932 या 1936 की मूवी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है। अब मनबीर जी मैं सोचता हूँ उस जमाने में इतनी ब्रिलियंट मूवी बनाना स्पाइन के ऊपर बिल्कुल एक आज बड़े बड़े डायरेक्टर ऐसी मूवीज नहीं बना सकते। तो एल्फ्रेड हिचकॉक तो ऑफ कोर्स वो एक पूरी है। ये YouTube इसमें बड़े फेमस एक्टर्स आप देखते हैं, आपको पता है यार, ये YouTube पे भी अवेलेबल है नोटोरियस एल्फ्रेड हिचकॉक की। ठीक है। ये बहुत अच्छी फिल्म और बड़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट मूवी है और स्पाइन के ऊपर है। तो जर्मनी ये वो सब इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी सुमन माथुर जी को पसंद आएगी ये मूवी मुझे लगता है। और आशा करता हूँ कि अगली दफा मैं कुछ और गर्मा गर्म खबरें आपके लिए लेके आऊँगा। नहीं, हमें ठंडी खबरें चाहिए, खुश करने वाली खबरें चाहिए। संजुक्ता जी कह रही हैं वीर ज़ारा वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एंड सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। आई एग्री विद यू संजुक्ता। और ये मदन मोहन जी की डेथ हो चुकी थी और उनके बेटे की हेल्प से उनके म्यूजिक को रिवाइव किया गया था। बिल्कुल। अच्छा, आप माना गया है। आप मेलबर्न में रहते हैं, आपको एक खबर देता हूँ एंड आई थिंक आपको भी इंटरव्यू करेंगे आप इनको। डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा हैं और ये MCG से SCG पैदल चलने वाले हैं टू रेज फंड्स। अभी मैं उनसे बात करने वाला हूँ। अच्छा, आज करेंगे आप बात? हाँ, अभी आपके बाद उनसे बात हो रही है फ़ोन पे। तो मैग्रा फाउंडेशन के लिए ही इज़ कलेक्टिंग मनी, तो पैदल चल रहे हैं MCG से
SCG सिडनी में। तो इनकी इनकी उम्र कितनी है मनबीर जी? ही इज़ आई मीन ऐसे उम्र मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ही इज़ नॉट 24। ओके, ओह दैट मींस ही इज 60 प्लस है। हो सकता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही हो, लेकिन एंड सुमन माथुर जी आपका थैंक यू कर रही है, नटोरियस बाय हिचकॉक ऑन फेसबुक एंड वीर ज़ारा। या तो नटोरियस इज ऑन यूट्यूब, नॉट ऑन फेसबुक सुमन जी। हाँ वो ट्यूबी टीवी के ऊपर भी है। TUBI 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 टीवी पे भी है, मैंने वहीं पे देखी थी। आजकल मैं मूवीज उसमें देखता हूँ काफ़ी। ठीक है। और वैसे भी अभी इस समय उतनी मूवीज रिलीज नहीं हो रही। आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जबकि दिवाली के आसपास काफ़ी इंडियन मूवीज रिलीज होती है, बट इस साल मैं देखा है कम है कुछ मूवी। तो डेट्स इट फॉर टुडे मनबीर जी। और चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम ये गया 304 प्रोग्राम, 304 एपिसोड्स हो गए। सो आपका बहुत शुक्रिया। आप जैसे दोस्तों की सपोर्ट है, और कई दोस्त जो सब्सक्राइब करते हैं, बट हमें और सब्सक्रिप्शंस चाहिए। $3.99 अ मंथ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इट विल हेल्प अस इम्प्रूव आवर शो। थैंक यू वेरी मच। एंड क्या कह रहे हैं नीरज जी? ये आपने 99 क्यों करा है? मतलब 4 ही कर देते आप इसको। हाँ, वो फेसबुक का पता नहीं क्या वो जो है, दैट्स व्हाट दे वांट, दैट्स व्हाट, वो बहुत लिमिटेड है। आई कुड मेक इट मोर ऑल्सो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मिनिमम लोगों को। बट टू रैप अप द होल थिंग, हालांकि हमने खत्म कर दिया था, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर है शशि थरूर, वो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं नवंबर में। अच्छा। हाँ, तो मैं उनके प्रोग्राम में जा रहा हूँ। आई विल ट्राई टू इंटरव्यू हिम, और वी कैन ट्राई टू गेट हिम ऑन आवर। दैट विल बी फैंटास्टिक अगर हो सके तो। हाँ, तो वो उनका यहाँ पे 13 नवंबर को मेलबर्न के लोगों के लिए ये उनका यहाँ पे प्रोग्राम है, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कर रहा है, और वो डेट इज बाय इनविटेशन ओनली, एंड देन वी हैव टू डू द RSVP। ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये है नीरज नंदा जी फ्रॉम southasiatimes.com.au। 15 भाषाओं में आपको न्यूज़ मिलेगी वहाँ पे, वीडियोस, एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने सुना, ही डज ग्राउंड रिपोर्टिंग, खुद जाके अटेंड करते हैं जो इवेंट्स होते हैं, एंड दे ब्रिंग द इंफॉर्मेशन टू अस। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच, एंड एवरीबडी हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू, लुक आफ्टर योरसेल्फ। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को
बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। लको लब से मिल जाने दो, बाहों में खो जाने दो, प्यार कर लो दिन और रात, दुनिया की परवाह नहीं। होठों को छूने नहीं दो, जो भी हो जाने दो, कोई ना मोहब्बत करना शरारत, इश्क इबादत करना शरारत, कोई ना मोहब्बत करना शरारत, इश्क इबादत करना शरारत, कोई ना मोहब्बत। लको लब से मिल जाने दो, बाहों में खो जाने दो, प्यार कर लो दिन और रात, दुनिया की परवाह नहीं। होठों को छूने नहीं दो, जो भी हो जाने दो, कोई ना मोहब्बत करना शरारत, इश्क इबादत करना शरारत, कोई ना मोहब्बत करना शरारत, इश्क इबादत करना शरारत, कोई ना I'm having difficulty connecting on the phone. Dim tanana dim tanana de re na dim tanana dim tanana de re na dim tanana dim tanana de re na dim tanana dim de re na। यादें तेरी कस्तूरी महके मेरा तन मन, घुल गई इन सांसों में
जैसे कोई सरगम तुझे है ढूंढता यहाँ वहाँ, तू ना मिले तो फिर इन यादों में खो जाने दे, खो जाने दे, खो जाने दे, खो जाने दे, खो जाने दे। तो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा था कनेक्ट करने के लिए डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा जी से, एंड मुझे वो मिल गए हैं मेलबर्न में। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, थोड़ी डिस्टोर्टेड है पर आ रही है। हाँ, डिस्टॉर्टेड है, ओके, यप, ओके, लेट्स ट्राई। हाँ, नहीं, क्लियर नहीं है। अच्छा, बट मुझे आपकी आवाज़ सही आ रही है, तो आप बोलिए। और हाँ जी, तो मेरे साथ डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा है। जैसे मैंने कहा, इनसे हमने 1-1.5 साल पहले भी बात की थी, और ही इज़ डूइंग समथिंग स्पेक्टैक्युलर। ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से लेकर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड तक पैदल चलेंगे 1300 किलोमीटर फॉर द मैग्राव फाउंडेशन, एंड ही इज़ रेजिंग फंड्स। तो व्हाई आर यू डूइंग दिस डॉक्टर मल्होत्रा? हाँ जी, कोहली साहब, नमस्कार आपको। नमस्कार। आपको भी और आपके श्रोताओं को भी सबको नमस्कार सबसे पहले तो। और दूसरा यह है कि मैं रिटायर्ड हूँ और अभी 73 का हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले कुछ अच्छा काम करके जाएं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया हैज गिवन मी अ ब्यूटीफुल लाइफ, और मैं सोचता हूँ कि अब मेरा कर्तव्य है कि मैं कुछ ना कुछ वापस देख के जाऊँ इस देश ने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हाँ, उसके लिए मगरा फाउंडेशन has become an inspiration for me because they have been doing a wonderful job helping 135,000 Australians so far, जो ब्रेस्ट कैंसर में से पीड़ित है, महिलाएं और पुरुष भी बीच में हैं, ज्यादातर तो महिलाएं हैं। हाँ जी। तो बताइए, कभी आप चलना शुरू करेंगे, क्या तैयारी है, और गिव अस एन इनसाइट, क्योंकि आपने ये वॉक, आई थिंक दिस इज द सेकंड टाइम यू आर डूइंग दिस। हाँ, एक तो यह है कि पहले जो 2 वॉक किए ना, उसके ऊपर हमने एक पुस्तक लिखी है, वो इस वॉक के खत्म होने तक आ जाएगी, मेरे ख्याल में शायद या जनवरी के शुरू में आ जाएगी। तो उसके बारे में फिर मैं चर्चा करूंगा जब पुस्तक आ जाएगी। उसमें मैंने पूरा खुलासा किया है। इसमें एक तो मैंने वॉक करने का क्यों डिसाइड किया पूरा डिटेल में। इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस, इट्स इन द अपब्रिंगिंग, जैसा आप समझते हैं हमारे भारतीय कल्चर में शेयरिंग इज पार्ट ऑफ अवर कल्चर। जैसा ट्रेन में भी चढ़ते हैं तो जो रोटी खाने का समय आता है सब लोग शेयर कर लेते हैं, चाहे कुछ जान पहचान है या नहीं है ट्रेन में। तो ये वो वैसा कल्चर हमारा, उस अपब्रिंगिंग से हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो सारे मैंने पुस्तक में डिस्कस किए हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं, आम लोग समझ नहीं पाते कि चलने में क्या मुश्किल है। अभी आप चल ही रहे हो ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। उसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि एक तो एज फैक्टर है। मैं 20 का, 25 का, 30 का तो नहीं हूँ। सो आई एम रिटायर्ड पर्सन एंड I've been in academia for many years। और उसके लिए 2 जगह मैं ट्रेनिंग करता था, एक तो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में और दूसरा एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट के साथ में, और तीसरा वॉक करना, जो रोज वॉक करना, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है आपको। तो मैं परसों भी गया था सिटी, यहाँ से अपने घर से, तो देयर वाज 47,000 स्टेप्स इन 1 डे। हाँ जी, परसों। और उसके 2 दिन पहले एक मित्र के वहां गया था, तो देयर वाज 40,000 स्टेप्स प्लस, उससे थोड़ा ऊपर था। तो धीरे धीरे आपको बिल्ड करना है। अभी क्योंकि वॉक
शुरू होने वाला है, 3 नवंबर को शुरू होगा MCG से जी संडे के दिन सवेरे 7 बजे। जी और क्योंकि अब शुरू होने वाला है तो आई हैव टू टेपर डाउन द वॉक्स, द लॉन्ग वॉक मैं मतलब सैटरडे को करने वाला हूँ, विच विल बी अराउंड 40,000 स्टेप्स। फिर उसके बाद नहीं करूंगा, उसके बाद फिर 10, 12, 15, 20 किलोमीटर चलूंगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। धीरे धीरे जैसा उसने प्रोग्राम बना के दिया हमारे ट्रेनिंग वालों ने, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक है। तो 3 तारीख को चैलेंजेस जो हैं, सॉरी, इसमें एक तो गर्मी का चैलेंज है, यस एब्सोल्युटली, और दूसरा यह है कि आपको सांप आते हैं रास्ते में। ओह वाह, अच्छा। हाँ, और प्रकृति भी ऐसी मतलब बड़ी हैरानगी होती है, आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि जहां बिचुमन, क्योंकि मैं रोड पे चलता हूं, मैं ट्रेल पे नहीं जाता वॉक करने के लिए। ठीक है। मैं रोड पे चलता हूं ताकि, क्योंकि वैन जो है वो लेफ्ट में चलती है और वो आगे जाके रुक जाती है या पीछे रुकती है, जहां उसको पार्किंग के लिए जगह मिलती है, जिसमें मैं सोता हूं। वो वैन मेरा घर है अगले 10 हफ्ते के लिए, 9 हफ्ते के लिए। तो मैं राइट हैंड में चलता हूं, फेसिंग द ऑनकमिंग ट्रैफिक। यस, और जैसे कहीं बरसात आएगी तो मुझे एक्सेस चाहिए अपना रेन प्रूफ, वाटर प्रूफ जैकेट पहनने के लिए, और दूसरे जूते पहनने पड़ेंगे वाटर प्रूफ वाले। और जैसे सर्दी होगी तो मुझे जैकेट चाहिए, जब गर्मी है तो मुझे उतार के कहाँ रखनी है, इसके लिए वो वैन साथ में चलती है। और ऐसा नहीं कि वॉकिंग पेस पे चलती है, वो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाके रुक जाती है या पीछे रहती है, तो रेडियो कांटेक्ट रहता है उनसे या फोन से कम संपर्क होता है। पर कई ऐसे फ्लैट स्पॉट्स आते हैं जहां ना रेडियो चलता है, ना फोन का सिग्नल है, ना इंटरनेट है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं इसको खड़ा करके सो सकते हो रात्रि में, नहीं, दिन में रेस्ट कर सकते हो थोड़ी बहुत, लेकिन रात्रि में अगर आपको रुकना है तो यू हैव टू गो टू अ कैरावन पार्क या कोई डेजिग्नेटेड प्लेसेस जो है, जो काउंसिल के द्वारा ऑथोराइज्ड है, वहां पर आपको जाके उसको पार्क करना हो और उसमें सोना है। और फिर दिन भर आप चलते हो तो पर आपको नहाना है, क्योंकि आप पसीने से तरबतर हो। और पिछली बार एक दो जगह ऐसे थी जहां पर कोई कैरावन पार्क नहीं था, तो हमको दरिया में नहाना था, और दरिया तक जाने के लिए 1-1 मीटर से ज्यादा ऊंची घास थी, जिसके थ्रू आपको चल के जाना है दरिया तक। और घास में सांप है, जिंदा भी है, मरे हुए भी है, और यू होप के भी उसके ऊपर पाँव नहीं आई किसी के ऊपर। तो पहले मैं सोच रहा था कि दबे पाँव ऐसे चलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मेरे ट्रेनर ने बताया कि नहीं, दबे पाँव नहीं, आपको थंपिंग आवाज करते हुए जोर जोर से चलना है, ताकि वो इधर उधर एस्केप हो जाए, थोड़ा हिल जाएंगे आप, क्योंकि उनके ऊपर पाँव आ गया तो काटेंगे, अदरवाइज वो आपको नहीं काटते। ओह वाह। और ऐसे ही कई जगह पर कैंगरूज का एकदम समूह आ गया, जमघट लग गया, 15-20 हुए, फिर 40-50 हो गया, फिर 150, 70-80 हो गए, ऐसे करके। तो मतलब देयर आर मेनी चैलेंजेस। फिर सबसे बड़ा चैलेंज जो बहुत कॉमन है, लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं है, वो है कि जैसे पसीना आता है तो आपको प्यास लगती है, प्यास लगती है तो आप पियोगे पानी, तो फिर आपको पेशाब करना पड़ेगा, कहाँ करोगे? ये भारत तो है नहीं कि कहीं भी कर दोगे, अब तो हर भारत में भी काफी ज्यादा टाइट हो गया, लेकिन उसके लिए फिर आपको वैन में जाना पड़ेगा, या कोई रास्ते में टॉयलेट है कहीं, या कोई रेस्टोरेंट है, कोई पेट्रोल स्टेशन है, कुछ खोजना पड़ेगा। नहीं तो आपको बोतल रखनी है जो वैन में फिर आप उसमें यूज कर सकते हो, और जैसे फिर आपको एक्सेस मिले फिर उसमें एम्प्टी करोगे। तो उस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपको कपड़े धुलाने हैं, 10 हफ्ते के कपड़े तो लेके नहीं चल सकते हो, आपको बार बार बीच में कपड़े भी धोने हैं, तो और खाना भी खाना है रोज, और खाना ताजा तो बना नहीं सकते आप, क्योंकि इतना वॉक करने के बाद में आप थक जाते हो जी। 25, 30, 40 किलोमीटर जब आप चलोगे तो उतनी क्षमता तो नहीं रहेगी खाना बनाने की। तो $1,20,000 आपने इकट्ठे करने, और काफी इकट्ठा भी हो गए हैं आपके। हाँ,
1,03,000 या 4,000 तक मेरे ख्याल पहुंच गया, पता नहीं 5,000 है शायद, मैं देखा नहीं अभी लेटेस्ट क्या है फिगर। तो अभी $15,000-20,000 और जमा हो जाएगा अगर लोग योगदान देंगे, तो उसी के लिए ये वॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर लोग अवेयरनेस रेज करने के लिए इसलिए मैंने नया रूट पकड़ा ये वाला। 2 बार मैं जो पहले किया है, इसीलिए मैंने अलग अलग रूट्स पकड़े थे कि ताकि अलग अलग रूरल एरिया में जो टाउन आते हैं उनके थ्रू मैं वॉक करके जाऊंगा, तो लोगों को अवेयरनेस आएगी मगरा फाउंडेशन क्या करती है और ब्रेस्ट कैंसर कितना रिस्की है। चलिए क्विकली बता दीजिए, अगर लोगों को डोनेट करना है तो व्हाट शुड दे डू, क्या है आपकी वेबसाइट, कहाँ जाएं? हाँ, या तो prabodhmalhotra.com सीधा उस पे जा सकते हैं, और या फिर मगरा फाउंडेशन में जाके आप करेंगे वॉक MCG to SCG, या गूगल भी कर लेंगे प्रबोध मल्होत्रा, तो उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। वेरी नाइस। एंड ठीक है, तो कोई भी अमाउंट करें, चाहे छोटा अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो, जो भी आपकी जितना हैसियत भी के हिसाब से जितना भी ज्यादा अमाउंट डोनेट करेंगे उतना ज्यादा टैक्स आपको रिफंड मिलेगा। अच्छा, टैक्स डिडक्टेबल, क्योंकि ये सारा टैक्स डिडक्टेबल। हाँ जी, डेफिनेटली। That's good to know. So if you want to make a tax deductible contribution donation for a very good cause to Prabodh Malhotra. How do you spell Prabodh? Prabodh? Prabodh Malhotra Malhotra। तो आप गूगल करें तो आपको prabodhmalhotra.com। हाँ, तो मगरा फाउंडेशन के पेज पर जाकर। सो ऑल द बेस्ट विद योर रेडीनेस, ऑल द बेस्ट विद योर हेल्थ, एंड ऑल द बेस्ट विद दिस ग्रेट थिंग जो आप हम सबके लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, एंड आप सिडनी आए तो हमसे बात कीजिएगा। कभी पहुंचेंगे सिडनी आप? हाँ जी, श्योर। हाँ, सिडनी वैसे तो ऑफिशियल वॉक इन जो है SCG पे वो होगा 3 तारीख को, फ्राइडे को, जिस दिन ओपनिंग डे है पिंक टेस्ट का। Okay. लेकिन मैं सिडनी पहुंच जाऊंगा 31 तक। ठीक है, तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा नंबर है आपके पास में। हाँ जी, श्योर। सो वी शुड स्टे इन टच। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो ये प्रबोध मल्होत्रा जी हैं, हु इज डूइंग द MCG to SCG walk to raise funds for the Megra Foundation. So do support अगर आपका दिल करता है तो। इट्स अ टैक्स डिडक्टेबल डोनेशन दैट यू कैन मेक फॉर अ वेरी वेरी गुड कॉज। आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मैं हूं मनबीर सिंह कोहली, और ये म्यूजिक फिर शैलजा चंद्रा आएंगी, एंड वील टॉक अबाउट हाउ टू नेविगेट फैमिली रिलेशनशिप्स। दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मैं हूं मैन बेया, और मैं स्क्रीन से गायब था, लेकिन मैं अभी आ चुका हूं, और मेरे साथ स्क्रीन पे जुड़ी हैं शैलजा चंद्रा। शी इज़ एन ऑथर ऑफ द मून स्मिथ गुलजार, एंड अ पॉडकास्टर, एंड मैनी मैनी अदर थिंग्स, एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और आज हम लोग बात करेंगे एक बड़े भयानक सी टॉपिक की। हाउ डू वी नेविगेट फैमिली रिलेशनशिप्स। और जैसे मैंने पहले कहा,
फैमिलीज़ हमें खुशी देती हैं, फैमिली हमें सपोर्ट देती हैं, फैमिली हमें ग्रोथ में हमारा सपोर्ट करती हैं, फैमिलीज़ हमें बहुत कुछ देती हैं, बट उसके बदले में फैमिलीज़ हमसे बहुत कुछ लेती भी है, जैसे कि हमारे मन की शांति, हमें देती है परेशानी, लेकिन बहुत खुशी भी। कई लोग ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये इसमें बड़ी आराम से नेविगेट कर सकते हैं, एंड कई लोग स्ट्रगल करते हैं, और हम सब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कई लोग इसको मैनेज कर लेते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट स्पीक टू शैलजा, क्योंकि लाइक मी शी ऑल्सो हैज़ अ फैमिली, आप लोग जो सुन रहे हैं आपकी भी फैमिलीज हैं, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट। व्हाट डू यू थिंक शैलजा, कैसी हैं आप? And like you, I don't know how to navigate relationships. Yep. So I'm the best person to talk to about this. I have no idea, to be honest. आपने सही कहा कि फैमिली है जो हमें बहुत सारे गम भी देती है, खुशी भी देती है, और फैमिली वो भी है जो हम चूज नहीं करते हैं. As they say, friends we can choose, but family we can't, and all that. लेकिन देखा जाए तो फैमिली हमें अपना विलेज देती है. As they say, it takes a village, and that's what family do more successfully than other institutions. So I think it's a very successful institution, if I can put it that way, despite its challenges and despite all the things that you said. बट जो ये बात है कि जो वो गम देती हैं और कई लोग नेविगेट कर लेते हैं और कई लोग नहीं कर पाते हैं, मुझे लगता है इतना क्लियर नहीं है. अगेन इट्स वेरी कंटेक्चुअल. कई बार शायद हमने और आपने जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमसे नेविगेट नहीं हो रहा, शायद हमने भी अच्छे से नेविगेट कर लिया हो, बट डिपेंड्स हेविली ऑन द कॉन्टेक्स्ट. और कोई लोग जो बहुत सक्सेसफुली नेविगेट कर पाते हैं, कई जगह वो भी फंस जाते हो, शायद ऐसा हो. तो मुझे लगता है डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू आर डीलिंग विद एंड द सिचुएशन इट इज. एंड yeah, there are only some situations where we can easily set boundaries, say no, and all the things that we are taught to do by experts. But वो सब जगह अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है. I don't know, like I don't know much about this. All I know is that जो फैमिली जो गम देती हैं हमें, उसमें एक गम ऐसा भी होता है जब हम उनकी वेल बीइंग के लिए परेशान हो रहे होते हैं. और एक उस गम के बारे में मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे पर्सनली मैं बहुत दूसरों के लिए वो गम ले लेती हूँ. वो शायद दुखी हो ना हो, हम उनके लिए ज्यादा दुखी हो जाते हैं. और एक टाइम था जब मैं इस चीज के लिए काफी परेशान हो जाती थी. और फिर एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि हम सब की सफरिंग, हम सब की स्ट्रगल, खुशियां सब हमारी इंडिविजुअल हैं. तो बड़ा मुश्किल है दूसरे के लिए दुखी होना. वी कैन बी देयर फॉर देम, बट हम लोग दूसरे के लिए दुखी नहीं हो सकते. तो उस चीज से मैंने थोड़ा सा अपने गम कम किए कि फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा दुखी ना हो, उनके लिए परेशान ना हो इतना ज्यादा. तो मेरी लर्निंग इतनी सी है. बाकी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास फैमिली नहीं है और मैंने ये सब नहीं किया, बट मुझे पता नहीं कि व्हाट टू से अबाउट इट. नो, एक तो यू रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि उनके लिए वरी करते हैं और उसमें भी नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई है डीलिंग विद अल्कोहल एडिक्शन, ओके, ड्रग एडिक्शन. नाउ यू नो कि भाई ये गलत कर रहे हैं, तो उसमें आपकी लड़ाई होती है एंड आपको पता है वो सुन नहीं रहे हैं, बट आपको उनको बदलने की पूरी कोशिश करनी है बिकॉज यू लव देम. क्या? एंड उसमें क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता खराब हो रहा है. इट्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप्स व्हाइल योर इंटेंशन इज वेरी गुड. तो एक तो फैमिलीज में ये भी होता है कि इंटेंशन, आई मीन ये मैंने एक्सट्रीम केस लिया है, लेकिन हो सकता है इट कुड बी समथिंग एल्स कि भाई तुम ऐसे मत बात किया करो. ये बात अपने पब्लिक में, यू आर एम्बैरेसिंग मी, डोंट डू दैट. सो उसमें भी आप ठीक कर लो, अपने किसी के ग्रेड्स ठीक कराने, व्हिच इज सच अ स्मॉल थिंग.
या तो ये एक चीज होती है. फिर फैमिलीज के अंदर देर इज लॉट ऑफ क्लोजनेस, लेकिन एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो देयर. जैसे सिबलिंग राइवलरी हम लोग बात करते हैं. ओके, सिबलिंग्स पेरेंट्स के बाद सबसे क्लोज रिश्ता है आपका, लेकिन एट द सेम टाइम सिबलिंग्स में राइवलरी आ जाती है. और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो पेरेंट्स एनकरेज करते हैं. इफ द पेरेंट्स मैनेज द relationship that the children have, तो it hopefully doesn't become toxic. वो एक Arabic saying है ना, me against my brother, me and my brother against my cousins, me, my brother and my cousins against the neighbors, you know. So एक बड़ा complex सा relationship है वो siblings के साथ में. You love them, they are part of you, they have changed you, you do anything for them, but at the same time siblings also cause a lot of grief. And siblings के साथ में जो connected लोग हो जाते हैं, फिर वो एक बड़ा जमघट बन जाता है. What is your, I don't want to say experience, but what is your understanding of sibling rivalry? Abhi obviously you also have siblings, even I have siblings, and sometimes there is that healthy कि हाँ भाई मेरे भाई ने ये किया है, मेरे भाई ने, you know, he's done well in business, even I should do well in business. Okay, but जैसे अभी अनिल अंबानी और दूसरा कौन है, मुकेश, उनमें भी competition है at that level, and they hate each other's guts. So how can such close relationships turn toxic? Why do they turn toxic? टॉक्सिक शायद बहुत एक्सट्रीम हो गया, लेकिन टॉक्सिक होने तक की जो पूरी एवोल्यूशन है, फ्रॉम यू नो लविंग सिबलिंग्स टू टॉक्सिक, जो पूरी जो ग्रेड्स हैं इन बिटवीन, मुझे लगता है वो एक कुछ हद तक नेचुरल से एवोल्यूशन है. और हमें रेजिस्ट शायद नहीं करना चाहिए. हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमेशा हम वैसे ही खूबसूरत मासूम सिबलिंग्स, प्यार करने वाले सिबलिंग्स की तरह रहेंगे. ये एक नेचुरल सा प्रोग्रेशन होता है, और इसकी एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि आनी चाहिए. यू नो द पोएटिक साइड ऑफ इट, जस्ट टू ऑब्जर्व दैट दिस इज वेयर वी आर नाउ, ये कहाँ आ गए हम, यू नो, एंड जस्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट. जब वो टॉक्सिक हो जाए तो आई डोंट नो, लाइक दैट्स लिटिल एक्सट्रीम, बट बिफोर दैट जस्ट दिस हार्मलेस राइवलरी अगर है तो वो थोड़ा नेचुरल सा ही प्रोग्रेशन है. मैं यहाँ पहुंची हूँ, इस बात पे पहुंची हूँ. तो वो कैसे फिर, अगर यू थिंक कि ये स्टेप बाय स्टेप जाता है टॉक्सिसिटी की तरफ, या एक झटके में पहुंच जाता है? मुझे लगता है टॉक्सिसिटी के लिए शायद कुछ एक झटका होता है. वो एक जेलसी या राइवलरी थोड़ी बहुत चलती रहती है ऊपर नीचे, एक की दूसरे से, दूसरे की पहले से, लेकिन जो वो टॉक्सिसिटी आती है वो उसके लिए कोई एक ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल कोई मोमेंट हो सकता है. उसके पीछे हो सकता है कुछ, जैसे आपने कहा कि कोई पेरेंट्स की वजह से कुछ झगड़ा हो गया या किसी और वजह से, बट दैट आई लाइक इन माय एक्सपीरियंस दैट देयर इज एन इवेंट, एन इंसिडेंट दैट turns it into, you know, other side. Yeah, but families में I think जो turning जो आती है वो और अलग players की entry से भी आती है. Maybe a new husband, a new wife, a child. बच्चों की वजह से बहुत लड़ाई होती है लोगों में कि तुम्हारे बच्चे ने ये किया, you know. Okay. Yeah, so there might be siblings, but they're competing with each other for the children. मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे से बेटर है, तुम्हारा बच्चा बदतमीज है, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को क्यों मारा. Okay, so it can be as, because that's it's changing, life is changing, the players are changing, and उसमें motivators are changing. आपको उचकाने वाले भी और बढ़ रहे हैं, दूसरी फैमिली से लोग आ रहे हैं. So the dynamics keep changing. वही बात कही, बात वही मैं भी वही बात कर रही हूँ कि it's kind of natural evolution as well. I think it is kind of naive to imagine कि सब खूबसूरत रहे. जब there are, you know, the moment there are
4 plus ball, there will be complex dynamics. And yeah, I think that acceptance, there will always be some things that we won't like, but still to sort of look past that and continue to have or to see beauty in familiar relationship would be, this ideal thing. Again, it's not easy, easier said than done. पर हाँ, जब वो टॉक्सिसिटी वाली लिमिट में बात पहुंच जाए, वो मुझे नेविगेट करना सबसे मुश्किल लगता है. वहां पे आई हैव जीरो आंसर्स. तो क्या करना चाहिए अगर आई नो यू सेड कि यू डोंट हैव आंसर्स, बट से फॉर एग्जांपल आपके सिबलिंग से कोई डिफरेंसेस हो जाएं, और होते हैं कई बार, शॉर्ट टर्म में होते हैं, कई बार छोटी चीज़ों पे होते हैं, बट से इट इज समथिंग दैट इज अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप. What do you think you would do? What I do is, and I have done once, is to reach out. I have written a long message, letter, WhatsApp or a letter, to sort of tell my side of the story. And with, all my heart, hope that they will see my story and give me a good response. Again, you cannot solve everything, and I think वो जो थोड़ी बहुत misunderstandings होती है, वो fully तो आप iron out नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक आपने हाथ बढ़ा के उस conversation को एक open किया है, so वो मैंने किया है खुद. लेकिन again वो सबके साथ possible नहीं है. Like with this sibling or with this person, I could do that, but there are instances where it's easier than that instance, but still I have not been able to reach out because I think maybe ego or some history, whatever it can be. So as I said in the beginning कि वो इतना contextual है, और फ्रेंड्स के साथ भी वही बात है. हम इस बारे में हमने बात भी की थी कि कई बार वो comfort level जो होता है, like with you for example, suppose if I ask you, oh Manbir ji, I'm in Parramatta, are you around? And you're like, I'm around but I don't have time for you, I would not feel bad. I don't know why I don't feel bad. I'm like, oh, मना कर दिया. But with some other friends, even if they say कि मैं हाँ आ रहा हूँ या आ रही हूँ लेकिन 10 मिनट लेट होंगी, मुझे वो भी चुप जाएगा. So it's very contextual. तो ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो विश्वास की बात है, एंड वो टाइम से आता है. बट वी ऑल गो थ्रू दिस डायनामिक्स इन अ फैमिली कि रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार ख़राब भी हो जाते हैं. एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि भाई लोग इसको छुपाते हैं, हम लोग छुपाते हैं, इवन मैं, कि भाई नहीं मेरा माई रिलेशनशिप विद माई फॉर एग्जाम्पल वाइफ इज़ नॉट गुड. अगर मैं लोगों से छुपाऊंगा. अगर मेरा रिश्ता मेरे नानी के साथ ठीक नहीं है तो आई वोंट टेल पीपल. देयर इज़ दैट शेम. एंड हम लोगों को ये पता नहीं क्यों, वाई डू यू थिंक इट्स अ कॉमन थिंग, या सिर्फ ये हमारे सब कॉन्टिनेंटल लोगों में ये शर्म है, या दैट स्टिग्मेटाइजेशन? I think you're right. I think हमारे साउथ एशियन या कॉन्टिनेंट के लोगों में ज्यादा है, लेकिन उसमें भी आप लोगों को कुछ लोग मिल जाएंगे ऐसे जो कि ओपनली बात कर सकते हैं. मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जहाँ पे वो ओपनली कह देते हैं कि ये है और ऐसे है. They don't really embellish the whole thing. Like for me, if I am talking about a not very good relationship, I would always put disclaimers and say, oh, don't get me wrong, I love them, but so I'll share, but I'll also sort of on the side have a list of caveats with it. So you're right, it is very hard. I think it is a reflection not on them but also probably on us and our ability to not be able to navigate, and that's probably why we hide this. And also I think there are again trust issues. With some people we don't hide it,
with some people we can talk about it, but with others we were like, oh, okay, इसको बताया तो हो सकता है कि ये गलत समझे, बात आगे बढ़े, वो सब. लगता है कि जैसे कोई अगर हमारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है जैसे मेरे किसी कज़न के साथ, तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मुझे लगेगा कि लोग बीच में आके फिर or they might aggravate the situation or take advantage of the situation. उससे ज़्यादा I think like my personal opinion is when I'm trying to hide a sour relationship, it's more about me thinking that it's a reflection on my ability to not maintain an important relationship. So and yet हम सब ये फेस करते हैं कि रिश्तों में कई बार दरारें आती हैं, वेल मीनिंग लोगों में भी आती हैं, एंड उसको आई थिंक वी डोंट नीड टू स्टिग्मेटाइज इट नॉर फील गिल्टी, एंड वी नीड टू लर्न. एंड ऑफ कोर्स रिश्ते ठीक करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है. इट्स नॉट ईजी. हाँ, तो जैसे कहते हैं ना कि दरार आएंगी, जैसे कहा जाता है कि some relationships are there for a reason or season, कुछ ऐसा है ना, मतलब कि सब चीज़ों की शेल्फ लाइफ होती है, सब चीज़ों की मतलब सब connections की, सब relationships की एक शेल्फ लाइफ होती है, which is a very yeah, I don't know, it's a little bit pessimistic view. थोड़ा skepticism भी है उसमें, लेकिन रिश्ते सही करना नहीं है अगर आप इस मुद्दे की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि takes two to tango. So हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा willingness है, you're reaching out as well, but the other person has a big firewall in front of them. So both have to be willing. And उनकी टाइमिंग उतनी ही डेलिकेट है जितना एक रोमांटिक इश्क की टाइमिंग होती है कि दोनों उस मोमेंट पे साथ हैं, राइट? उसी तरह से दो किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे सिबलिंग, फ्रेंड्स, इस सब में जब दरार को ठीक करने वाली बात है तो दोनों को उस मोमेंट, उस सटल मोमेंट पे साथ होना बहुत जरूरी है. What about mediation? रेयर होता है. Do you think family relations में mediation चलता है? I don't think it would work. ये relationships Australia is built on that. कि families में, रिश्तों में दरारें आती हैं तो you can go there and say कि भाई हाँ हमारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, husband wife में नहीं चल रहा है. This is very common. लेकिन yes, also siblings में, और if you undergo therapy for instance, तो उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा रिश्ता मेरी बहन के साथ ठीक नहीं है and that is affecting me, you can get intervention, you can get mediation. Have you heard from these people that it's worked? ये आप रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया की सक्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हुआ है, like long term? How long have these case studies been watched? हाँ नहीं, मतलब ऐसा तो मेरे पास I don't have any data, but I mean I've seen कि हाँ भाई रिश्ता खराब हो रहा है तो कोई somebody will jump in and say यार क्या कर रहे हो तुम लोग यार, let's get on with it. तुम भाई हो, let's solve this, what's happening. एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ जब I had hoped for someone to jump in, and because sometimes this person, I do not relationship Australia, but imagine in your familial arrangement or with friends, you might have somebody who is aware of this person's perspective and the other person's perspective too, and will bring a balanced view. And a person like this is, really can be quite an asset in such a situation. मैं आपने अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा लगा था कि काश ये पर्सन मेरे दिमाग में था भी, कौन पर्सन can be such a useful mediator right now, but that person didn't jump in. They chose to stay away or to stay ignorant about the whole thing. That didn't help much. Yeah, so it's very hard, but I think जब दरारें आती हैं तो first of all we shouldn't feel guilty. We should make some improvements, I think.
एंड ये कम्युनिकेशन की ब्रेकडाउन्स हैं. आई डोंट नो अगर आपको वो फिल्म याद है बावर्ची. Yeah, and that's what his speech in the end is about. कि you know families में ऊपर dust पड़ जाती है रिश्तों पे, तो आके मैं झाड़ देता हूँ. So that was a very nice and sweet film. But I think उसके पीछे की जो बात है कि जो basically relationships, any relationship, उसमें communication is a key. I think 80% problem communication का है. तो we can always improve our communication. If you are undergoing such a thing, don't be ashamed of it. अगर if you need to ask for help, अगर आप खुद से नहीं solve कर सकते, get some help. You know, and we are lucky in the Western world. I think हर चीज़ को बहुत structure किया हुआ है, you know, and it is accepted. कि yes, you will have problems in your relationships. So these are the steps to go through, and this help is available. Whether you can talk to a psychologist, या Relationships Australia, या church. You know, so all these resources are available, but I think stigmatization जो है, we can avoid it, and obviously you can't change everybody. ये भी है. Yeah, so I think it's a very beautiful advice, मनवीर जी, क्योंकि मैं अगर इसको 4 steps में बांटना चाहूँ, तो अगर दरार आई है तो पहला step होगा to reach out, you know, do whatever you can do. Just in my case, I said I wrote that letter, but with no expectation. I think we have to reach out without that expectation कि सब ठीक हो जाएगा, सारी दरारें भर जाएंगी. But still do that action, because so you know you don't have that regret कि try नहीं किया. उसके बाद you can come to that point of sort of acceptance कि this is the natural progression or evolution of a relationship, and this is where we are now. And at that stage as well, whatever beauty you can draw from that connection would be beautiful. And then with that, you know, your advice, don't take the blame on yourself. Don't be ashamed of it. Feel free to reach out for help to get that peace of mind. So I think all these stages are important to sort of acknowledge and travel through. And get external help. मुझे लगता है हम लोग in our society हम लोग external help में विश्वास नहीं रखते ज़्यादा. And एक cynicism है. I think विश्वास तो रखते होंगे. मेरा personal view ये है कि वो structure मुझे बहुत temporarily help करता है. I do trust the system or the process, but उसके बाद मुझे लगता है कि our minds are way too complex, you know, to stick. I'm not a very disciplined person, so I'll not stick with those 5 rules for more than 3 weeks. उसके बाद you know, it starts to become a bit bizarre. You know, what just happened? Okay, so with those 3 weeks, you have grown, you have evolved, the situation has evolved, and I find it very hard to stick with that structure 3 weeks into the future, and I hope to follow that process. But yeah, so that's the struggle with any structured help. Yeah, but if you see success अगर हो रहा है वो steps में, तो it will motivate you. Benefit. I think इस सब में time is the healer. And willingness to change. Yeah. Willingness to change, to admit fault. बहुत बड़ी चीजें हैं ये. And I struggle with admitting fault कई बार. Although you have had other people admitting fault. Yeah. And I'm being harsh. ऐसा नहीं कि I have difficulty. Sometimes I might have had difficulty. Maybe the person जो सामने है उनको लग रहा है कि नहीं यार ये तो admit कर ही नहीं रहा है. Because they think I'm at fault. And I might believe that I'm not at fault. And हर एक के साथ यही होता है ना. Because we all believe कि हमारी गलती है ही नहीं. Because it's easy. अपनी गलती ढूंढना और उस पे काम करना बहुत मुश्किल काम है. Yeah. But I think that, as you said in the beginning, we start with... Sort of say sorry. Yeah, but meaningful sorry.
हाँ, meaningful sorry. I think meaningful sorry in the sense to keep the connection going. If the connection is important to me. Yes, and look, I must admit कि मैंने खुद से बहुत सारी गलतियां की हैं रिश्तों में. बहुत. I have lost good relationships, whether they are friends, whether they are close people in the family. I have offended. They've forgiven me also. बहुत लोगों ने मुझे माफ भी किया है. And जब मैं retrospectively देखता हूँ मुझे लगता है यार क्या you are great. But yeah, it takes time. It's not easy. But as you said, takes two to tango. Both of you need to want कि भाई ये रिश्ता आगे लेके जाना है. अगर आपने डिसाइड कर लिया नहीं भाई आई डोंट, ये रिश्ता अभी ख़त्म हो गया, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, मुझे शैलजा से कुछ चाहिए था, यू नो आई वांटेड सम मनी आउट ऑफ हर, मिल गया, चल भाई ख़त्म, आई डोंट केयर. या हाँ, बट अगर आपको लगे कि भाई इसमें वैल्यू है, इसे मेंटेन करना ज़रूरी है, तो यू विल मेक होपफुली द एफर्ट एंड उसमें फॉरगिव, मूविंग ऑन, asking for help. These are common sense ideas, I think we can all admit. Yeah. But Shailja, be gentle, I think. Be gentle, yes. Be kind. Right, that's what, yeah, be kind. उस दिन मैंने एक बड़ी खूबसूरत, बहुत घटिया फिल्म देखी, केट, एंड खूबसूरत घटिया मीन्स नहीं, मैं कुछ कहने वाला था कि खूबसूरत चीज़ सुनी. वो बहुत अजीब सी फिल्म थी. इट वॉज जो रिवेंज एंड ऑल दैट. लेकिन उसमें एक लाइन शी सेज, बी अ लेस एंग्री सेल्फ, गो एंड बिकम अ लेस एंग्री सेल्फ. एंड आई सेड दैट इज सो नाइस. शी इज टेलिंग दिस चाइल्ड कि भाई तू जा, यू कैन बी अ सेल्फ दैट इज नॉट एंग्री. एंड आई थॉट वाओ, क्या डिसीजन है. We've been joined by Bal Purewal ji, Tinny Kohli, Yogesh Khattar ji is watching, and Smitha Anthony Alexander is also watching. So thank you for all that. But be kind, be less angry. I mean, some people will say, "Kya yaar, how can you just be less angry?" It's a it's a mental setup. मैं just because तुम बोल रहे हो कि be less angry, तो मैं थोड़ी हो जाऊंगी less angry. The willingness to learn and to be aware, I think. And to change, I think. Want to change. And there's lots of things that I think we are simplifying it, but some things to pick up from there. But thank you, Shailja ji, for staying up so late. And I'm not going to be angry about it. Thank you. And if you decide not to talk to me, then I can get some help. I can ask Samit कि भाई help कर. Serenity now. Serenity now. That's what this cup says. All right. Serenity now. All right. अपना ख्याल रखिए. That's Shailja Chandra. She's the author of the Moonsmith Gulzar. And हम लोग बात कर रहे थे about how to navigate relationships in a family that both of us don't have very clear answers on. Have a good night, Shailja. Thank you. Thank you. Take care. Bye. So that's Shailja को good night कर देते हैं. And let's see if I can do that here. सादिक रहमानी इज वॉचिंग. सादिक भाई कैसे हैं आप?
सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और मेरे साथ क्रिस मल्लिका भद्रा जुड़ी हैं, सिटिंग इन सनी मेलबर्न, एंड दीप्ति साजवान जी इज ऑल्सो वॉचिंग. दीप्ति जी, आई होप यू कैन स्टिक अराउंड. क्रिस, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? गुड इवनिंग मनवीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस गुड गुड. बट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? लाइफ में कुछ नहीं, BAU नॉर्मल चल रहा है. BAU हो रहा है. बाऊ बाऊ. And how's your podcast going? Podcast is all right, Manveer. This week, I released a video conversation where I spoke with Vic Bhandari and Bhavisha. So basically, they are a couple who started this men's health awareness ball. And I'm very fortunate to be invited for the ball earlier in May. So उनसे हमने बात की to raise awareness around men's health, overall health. So please have a look and देखें उस वीडियो को and talk to the men around your lives about their health and how are they feeling. And today you want to talk about something weird. मेरा तो सारा टॉपिक ही weird ही होता है मनवीर, आपको पता ही है. So tell us, क्योंकि मैंने वो गलत इस पे लगा दिया, but what were you wanting to talk about? That pleasing everyone, is that better than self-respect? जी. What does that mean? Which one do you weigh down more on? आपका क्या ख्याल है? पहले तो डिफाइन कीजिए कि क्या मतलब है प्लीजिंग एवरीवन. People pleasing वही होता है ना कि हम we go out of our way to make sure कि everybody around us is happy, या हमारा जो society circle है वहाँ पे we are also cherished, हमारी एक position है that is intact. And self prestige तो self prestige है जो है. तो why do you think it's a trade-off कि either you can please people or have your self-respect? Why do you think like that? क्योंकि कभी-कभी मनमीर, when I speak with people, when I see that some people literally do things that don't sit well with their value system, but they just do it nevertheless to make sure that other people around them are not pissed off. मतलब कोई कुछ बोल के भी आ रहा है, even then they're taking it all in कि नहीं ठीक है, रहना पड़ता है सोसाइटी में रहने के लिए, थोड़ा आपने सुन लिया, थोड़ा छोड़ दिया. And that kind of prompted me to ask this question to our कहते सुनते people, that where do you draw the line? कितना आप सुनोगे to ensure कि हाँ भाई सोसाइटी में सब हमको मान रहे हैं, हम सुनते ही रहे. लेकिन हम सोसाइटी में हर बात पे अड़ भी नहीं सकते ना. चक्कर तो ये है, आप अड़ जाएं तो वो भी पॉसिबल नहीं है. आप अड़े तो लोग they'll kick you out. Nobody will want to talk to you कि आप हर बात पे अड़ जाएं तो. हर बात पर ना, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम सेल्फ एस्टीम पे बात आ गई है, even then do you keep pleasing people just for the heck of it, just for the heck of being a part and parcel of the society? Why do you think it's just for the heck of it? क्योंकि we are social animals. हम लोगों को एक दूसरे की वैलिडेशन चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, प्यार चाहिए. एंड उसमें कई बार आपको यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस. अभी जैसे मैं इसके पहले शैलजा से बात कर रहा था अबाउट रिलेशनशिप्स इन फैमिलीज, एंड फैमिली में अगर 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो आप ऑब्वियसली हर एक के साथ यू कांट बी इक्वली कनेक्टेड. उसमें भी प्रायोरिटाइजेशन होंगी, उसमें भी फ्रिक्शंस आएंगी, एंड समटाइम्स यू हैव टू से नो, बट ओवरऑल यू नीड टू बी एबल टू मेक दोज कंसेशंस. दो चीजें मनवीर, एक है यू मेंशन अबाउट फैमिली. अब फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, कहीं ना कहीं वी आर टाइड बाय ब्लड. वैसे तो एक्सटेंडेड फैमिली में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसको चलो मैं थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दूं कि चलो चाचे कजिन्स हैं, ये है वो है. बट जो सोसाइटी है वहां पे हाँ जी हमें वैलिडेशन चाहिए, हम एक दूसरे, बट वो प्यार कैसा प्यार है जहां बंदा मुंह पे कुछ भी आके बोल के सुना के जा रहा है, एंड एवरीथिंग इज टेकन फॉर अ ग्रांटेड कि यार ये बंदा ना कुछ नहीं बोलेगा, एंड हम उस पर रह रहे कि नहीं बोल देंगे तो फिर सोसाइटी में रिलेशन खराब हो जाएगा. रिलेशन पहले से ही इम्बैलेंस नहीं है क्योंकि दैट पर्सन हैज एन अपर हैंड ऑल द टाइम. तो हाउ शुड वी डील विद दैट कि ओके हो सकता है इट्स अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स एंड उनको यू मेक कंसेशंस फॉर देम, एंड सडनली आप अड़ जाएं कि आई एम नॉट मेकिंग एनी कंसेशंस, तो वो रिलेशनशिप विल ब्रेक डाउन. I agree, Manveer, but when it comes to my self-prestige each and every time,
There cannot be a trade-off between my self-prestige with anything else. और जो मेरा अच्छा दोस्त होगा, the person I consider close will understand that कि यार ये मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी, it might hurt her feelings or it might hurt his principles or values. तो वो बंदा वो बोलेगा ही नहीं in the first place. So assumption है कि अगर अच्छा कोई अच्छा दोस्त है या अच्छा रिश्ता है तो वो बोलेंगे नहीं, और अगर बोलेंगे तो आप अगर रोकेंगे उनको तो वो समझ जाएंगे. तो हाँ, लेकिन ये तो then we have to constantly test it, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा. You might think हाँ मनबीर will not say this or not expect this or he'll make that, he'll be okay. But till you test me, you don't know. And उस testing में you'll lose relationships. But फिर क्या करें? On the wheel for a second. जैसे I look up to you as my mentor and senior, and we have a touchwood, a good relationship. I'll ask you something. Would you, आप क्या ऐसे कुछ भी मुझे पूछे, Chris यार शादी क्यों नहीं कर रही? Would you ask me that question like that? No, I wouldn't. Exactly. That's my point. कि you would understand कि यार ये if I ask her, शायद इसको बुरा लग जाए, शायद नहीं भी लगे, but I'll better not ask that question. That's very interesting. But you might see that as not being interested in your life. ये भी हो सकता है ना कि भाई ये मनबीर मेरा इतना अच्छा दोस्त है, why doesn't he ask me about this? In fact, this was a very funny discussion मैं उस दिन सुन रहा था आज से थोड़ी देर पहले about people who have changed their appearance through whatever. Should you ask them or you shouldn't ask them? Okay? Correct. Some people said don't ask. Okay? While some of the people who changed their appearance felt ki why are these people not asking me? Because I have made this change so that I am noticed. Okay? So that's the other side. So as a friend, you might say, why is Manbir not even asking me, why are you not getting married? He's not interested in my life. Okay? I would say it this way, कि Manbir, not my life has certain other avenues also. So इसमें अगर if he's not even asking, that's fine. It's okay. इसमें इतना बुरा लगने वाली कौन सी बात? Yep. And as a senior, if I have to bring it up anytime with you, I will initiate that conversation. Manbir, I need feedback, or Manbir, there's this XYZ person. What I have these thoughts, I'll bring it up automatically because then I'll know that there is a certain level of trust and respect. I can bring it up with Manbir. Okay. Yep. And yep. So constantly, as I said, we'll need to keep testing relationships. Whether that relationship is worth keeping, number one, or whether that relationship can be trusted to weather this storm. Exactly. तो जहाँ पे आप श्योर हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आई एम श्योर कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो यू कैन से ओके आई डोंट वांट टू प्लीज यू, I want to look after you, but I don't have to do things that hurt my self-respect. But don't you think it's a contradiction कि जहाँ करीब हैं आप तो वहाँ पे you don't mind losing your self-respect? No, I will. But self-prestige is above everything. Okay, so you'll keep your self-esteem. Yeah, for sure. Yeah. Absolutely. So you want to protect your self-esteem at every cost. But you are saying that we tend to lose self-esteem for people and relationships that don't matter. Because what I've seen I've seen it through my life is once you lose your self-prestige, ना मनबीर, चाहे वो कितना ही करीबी रिश्ता हो, you will be taken for a ride. Okay, so you're a slight cynic there, रिश्तों के लिए. I'll take that as a compliment. Yep. Okay. And we'll discuss that some other time, whether it's a good thing to be cynical in your relationship. But if it comes to for me, if it comes to myself, like मेरी और mom की भी, अक्सर we lock horns with each other. कभी कभी मुझे उनकी बात अगर, like she is my mother. कभी अगर मेरी उनकी कोई बात बुरी लग जाती है जो मुझे, मैं उनको बोलती हूँ, मम्मी, I think what you said didn't go down well with me because you hurt my feelings there.
if I can have that conversation with my mother, तो ये दोस्त ये वो तो सब उनके बाद ही आते हैं. तो फिर why don't you have those conversations with people who don't matter? Why do you think? मेरा ये I have this mindset कि जो एकदम acquaintances है, they don't deserve my justification at all anyway. Yep. People who are close to me, if they have done things repeatedly that hurt my self-esteem, not once, ऐसा नहीं कि I'm sensitive to the touch, once, twice, thrice, then I'll have a chat with them. Even if they don't seem to get the sense out of it, not worth my time, really. ठीक है. And I think with everything, you need to grade your relationships. Yeah. कि maybe draw an inner circle, बाहर का circle, concentric circles, and see who's figuring where and how far you'll go for who. Absolutely. Sanmeet, who's watching us in India, says, I agree with Mallika ji. Okay, that's great. So I think it's a matter of grading relationships, then deciding, Yes. okay, this person is on the outer, so I don't need to do this for them till they move in, and they might do something for you because of which they move into your close circle. Yeah. They have done something. They've done something that has saved your life, for example. है ना? ठीक है. So grade कीजिए, अपनी self respect को सबसे ऊपर रखिए. But I wouldn't agree कि भाई we need to be cynical with people because I believe people are generally good. बीच में होते हैं कई मेरे जैसे भी, लेकिन mostly people are good. I think maybe we'll have this conversation another time. Yes, let's do that. Okay. All right. You take care, Chris. You have a good night. Thank you, Mami. And enjoy Melbourne. Take care. You in Sydney. Okay, bye. Say bye. So that's Chris, Mallika Bhadra, and she is in Melbourne, and I am in Sydney. और आप लोग जहाँ पे भी हैं मुझे बताइए कहाँ पे हैं आप लोग. Thank you for being a part of this show, and thank you for listening. Daljit, if you're still there, I hope you're doing well. बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, and I don't know क्या सोच रहे हैं, लेकिन Sumit Kohli is also watching, and Sumit is the very, very big brains behind this technology that we use. थोड़ी सी music, and then good night. I'll talk to you next week. Be good. Bye-bye.